MBA in finance, I believe it's the very first choice जो हर MBA aspirant के mind में रहता है when he or she go ahead to pursue MBA from a top B school like IIMs की अगर हम बात करें या other top B schools की बात करें, so this is the very first thing that comes to your mind कि नहीं यार finance में इतने अच्छे placements होते हैं, opportunities इतनी ज़्यादा होती है, almost every B school is offering you MBA in finance और फिर फाइनेंशियल रोल्स के लिए उन टाइप की फर्म्स भी आती हैं which gives you that offer in finance. So yes, again a most preferred choice for all the MBA aspirants out there, and today we'll be speaking about that particular role, MBA in finance. ऑलरेडी मैंने कंसल्टिंग के बारे में प्रीवियसली सारी चीजें कवर कर दी थी. देन आई हैव आल्सो कवर्ड अबाउट इंटरनेशनल बिजनेस. I've also spoken about analytics, and now let us speak about the very most, like the most preferred choice among the MBA aspirants, that is MBA in finance. And in this particular video, I will not be just talking about what is the highest package in finance, but I would be breaking down it to you that ideally who should pursue finance, key skills क्या required होते हैं if you go ahead with a financial kind of a role or a finance kind of a role. टॉप 15 बी स्कूल्स जो आइडियली आपको टारगेट करने चाहिए इफ यू आर राइटिंग कैट 2025 एंड इफ यू वांट टू परस्यू एमबीए इन फाइनेंस. एंड व्हाट इज द सैलरी रेंज, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, टॉप फर्म्स कौन से होते हैं, उनमें किस तरीके के रोल्स होते हैं. सो इस वीडियो में आपको वो सब कुछ मिलेगा. सो मेक श्योर यू स्टिक टिल द एंड. एंड हेलो एंड वेलकम अगेन टू सुपर ग्रैड्स कैट यूट्यूब चैनल. एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. Okay, so ideally, who should pursue MBA in finance? किसको pursue करना चाहिए? Individuals who enjoy working with numbers, data and analysis. Very important aspect. अगर आप numbers के साथ बहुत comfortable हो, data के साथ बहुत comfortable हो, you like to analyze things, you like to break down things, then you should definitely pursue MBA in finance. Those interested in corporate finance, investment banking, wealth management, private equity, risk management, or financial consulting. Now, finance is a huge huge ocean, and there are multiple of roles, multiple of opportunities. तो अगर इनमें से आप किसी भी चीज में इंटरेस्टेड हो, आपको मार्केट्स के बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, आपको इकोनॉमी से रिलेटेड चीजें पता करना बहुत अच्छा लगता है, then ideally you should pursue MBA in finance. Aspirants looking for strategic roles influencing business financial decisions. If you are someone who's very much comfortable with data, number handling, because initially जब आप start out करोगे, of course I'm not assuming कि आपको पता ही होगा सब कुछ. Neither B schools are assuming that you are already aware कि finance क्या है, because सब अलग अलग background से आते हैं जो कि आपके साथ रहेंगे उस पर्टिकुलर क्लास में. सो जब हम अगर नॉर्मली बात करें तो यस, सेकेंड ईयर में यू आइडियली चूज कि आपको अपना मेजर्स और माइनर्स किस में लेना है. अगर आपको फाइनेंस में एमबीए करना है तो वो आपके पास चॉइस रहती है. एंड बाय द टाइम यू इवेंचुअली फिगर आउट कि भाई मुझे फाइनेंस में एमबीए करना है, मार्केटिंग में करना है, या किस पर्टिकुलर रोल में आइडियली मुझे जाना है where I would be fitting in. Otherwise, if I talk about some other B schools which are specifically meant for finance, जहाँ पे सबसे ज्यादा टॉप पे रहता है, लाइक बी स्कूल्स लाइक एनआईबीएम पुणे या एनआईए पुणे, जहाँ बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस के बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं. सो दोज बी स्कूल्स आर स्पेसिफिकली मेंट फॉर द फाइनेंस काइंड ऑफ रोल्स, और आपको वही वहाँ पे सबसे ज्यादा बल्क में मिलेंगे. लेकिन अगर हम बाकी बी स्कूल्स की बात करें जहाँ पे आप एक नॉर्मल पीजीडीएम परस्यू करते हो, तो आप सेकेंड ईयर में डेफिनेटली अपना स्पेशलाइजेशन चूज करते हो. नाउ देर आर सर्टेन बी स्कूल्स विच ऑफर a specific program whole and soul which is designed for finance. तो पीजीपी एंड फाइनेंस आपको दिखेगा काफी सारे बी स्कूल में. जैसे हमने एनालिटिक्स वाले वीडियो में बात की थी, तो आई हैड मेंशन कि एनालिटिक्स का एक स्पेसिफिकली 2 साल का अलग प्रोग्राम होता है. सो यू ऑल्सो हैव सच प्रोग्राम्स विच आर डिजाइन इन दीज बी स्कूल्स. तो अभी अगर हम बात करें कि हु शुड बी आइडियली परस्यूइंग, सो ऑलमोस्ट एवरी बी स्कूल आउट देयर currently in India is having that program, फाइनेंस वाला प्रोग्राम रहता ही है, या वो आपको स्पेशलाइजेशन चूज करने के लिए बोलते हैं इन द सेकेंड ईयर. सो इट्स देयर.
Next, people with strong analytical skill and an interest in markets, investments and economics. अगर आप इनमें से किसी भी चीज में interested हो, interest रखते हो, you like to read about it. See, now you're preparing for CAT, so you would be reading a variety of articles. बहुत सारी चीजें आप here and there पढ़ोगे, especially अगर मैं CAT 2025 या 2026 के aspirants की बात करूं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका इंटरेस्ट आइडियली कहाँ है. प्लस माय रिकमेंडेशन वुड बी, सिंस यू हैव टाइम, भी आपके पास टाइम है, 7 महीने हैं, तो आप थोड़ा सा रिसर्च करना स्टार्ट कर दो. दैट इज द रीजन वाई वी आर ऑल्सो ब्रिंगिंग इन सच वीडियोस फॉर यू, सो दैट यू गेट दैट क्लैरिटी दैट ओके वेयर डू आई वांट टू आइडियली गो, विच पाथ डू आई नीड टू आइडियली गो. इट वुड बी easier for you guys to decide. Next, those aiming for leadership roles in financial services or corporate finance department. Now, when we talk about finance, of course, वो जो leadership वाले roles होते हैं वो आपको जल्दी मिलते हैं as and when you gain the experience. So, if you wish to pursue finance and if you wish to go ahead with the leadership roles in financial services or corporate finance departments, then you should be pursuing MBA in finance. Next, what are the key skills required? तो skills क्या required होते हैं? Do I need to do a lot of, मुझे क्या बहुत सारा courses करना चाहिए पहले अगर मुझे MBA in finance करना है? No, no such things are required. सबसे पहला skill तो है financial analysis and modeling का. तो अगर हम बात करें B schools की for that matter, तो वहाँ पे वो जो आपका कोर्स का स्ट्रक्चर होगा या करिकुलम होगा वो डिजाइन इस तरीके से किया जाएगा कि आपको ये सारे सब्जेक्ट्स या ये सारे एस्पेक्ट्स पढ़ने ही होंगे. सो यू डू नॉट नीड टू गो एडिशनली एंड परस्यू सम अदर कोर्स व्हेन यू आर इन योर 2 years ऑफ MBA जर्नी. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में आपको नॉलेज अच्छा होना चाहिए. फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि क्या चल रहा है फाइनेंशियल मार्केट्स में. रिस्क मैनेजमेंट, अगेन देर आर जॉब रोल्स विच आर स्पेसिफिक टू रिस्क मैनेजर्स. बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे कंपनीज को रिक्वायर्ड होते हैं रिस्क मैनेजर्स जो असेस कर पाए रिस्क को और उस हिसाब से जो डेवलप कर पाए जो भी है स्ट्रक्चर. सो रिस्क मैनेजमेंट अनदर इंपॉर्टेंट स्किल. इन्वेस्टमेंट एनालिसिस आपका स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग रोल और जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम पे वाला रोल है दैट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग, अटेंशन टू डिटेल, अगेन क्योंकि हम फाइनेंस के रोल की बात करें तो देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा इन्वॉल्व, देयर आर नंबर्स इन्वॉल्व, तो आपका अटेंशन टू डिटेल जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. नेगोशिएशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, अगेन अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. नॉलेज ऑफ टूल्स, तो एक्सेल का बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए. ये नहीं कि मुझे मीडियम लेवल का या इंटरमीडिएट लेवल का एक्सेल पता है, आई नो बेसिक एक्सेल. नो, यू शुड बी अवेयर विथ एडवांस एक्सेल. एसक्यूएल का आपको बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए. ब्लूमबर्ग टर्मिनल एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग टूल्स, सो देयर आर लॉट ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग टूल्स आल्सो आउट देयर, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए. सर्टिफिकेशंस, again it is an optional thing to be a CFA or having a FRM certification. ये ऑप्शनल है, बट अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आपको इसका एडवांटेज जो है एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट इन द फाइनेंस फर्म्स और द कंपनीज और द रोल्स दैट आर आउट देयर, आपको वहां पे एडवांटेज डेफिनेटली मिलेगा. नेक्स्ट, what do people in finance roles typically do? क्या करते हैं? सबसे पहली चीज, एनालाइज कंपनी फाइनेंशियल्स टू एड डिसीजन मेकिंग. ठीक है, पहले तो आपको एनालिसिस करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, डीप डाइव करके कि ओके क्या नंबर क्रंचिंग कैसे होगी, क्या होगा, किस तरीके से मुझे डेटा को प्रेजेंट करना है. ओके, यू विल हैव टू यूज अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल टूल्स. आपको मे बी डीप डाइव करके कंपनी की सारी बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये सारी चीजें भी पढ़नी पड़ेगी टू प्रेजेंट द डेटा एंड टू कम विद अ बेटर प्लान ओवर देयर. नेक्स्ट, प्रिपेयर बजट्स, forecasts and financial reports. Financial report prepare करना another important aspect है when you go ahead in the finance role. Manage investment portfolios and conduct valuations. आपको valuations conduct करना आना चाहिए, आपको portfolios manage करना आना चाहिए. ओके, आपकी कंपनी के जितने भी लोग एसोसिएटेड हैं, जितने भी पोर्टफोलियोज हैं आपके फर्म के पास, जिस भी फर्म में आप काम कर रहे हो, उनको आपको मैनेज करना आना चाहिए.
नेक्स्ट, एडवाइस ऑन मर्जर्स, एक्विजिशंस एंड रीस्ट्रक्चरिंग। अगर कंपनी में रीस्ट्रक्चरिंग की रिक्वायरमेंट है, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हो गए, कंपनी के स्टॉक्स हो गए, वो कैसे आने चाहिए, जो कैश है कंपनी का वो किस तरीके से फ्लो होना चाहिए, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एवेल्युएट रिस्क एंड इंश्योर रेगुलेटरी कंप्लायंस। अगेन, जैसा कि मैंने कहा कि आजकल फर्म्स को रिस्क मैनेजर्स भी चाहिए होते हैं टू असेस द रिस्क एंड ऑल दोस थिंग्स। ऑप्टिमाइज कैपिटल स्ट्रक्चर एंड मैनेज कंपनी लिक्विडिटी। कंपनी का जो कैश है, जो मनी है, उसको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए वो आपको आना चाहिए। engage in फंड रेजिंग एंड इन्वेस्टर रिलेशंस। अगेन, अगर लग रहा है कि नहीं, योर कंपनी हैज टू गो इनटू एन आईपीओ और समथिंग लाइक दैट, यू शुड बी हैविंग दैट आइडिया कि ठीक है, मुझे फंड रेजिंग के लिए किस तरीके से किस इन्वेस्टर से बात करनी है, कैसे रीच आउट करना है, वो सारी चीजें। नेक्स्ट, हैंडल ऑडिट्स, टैक्सेशंस एंड इंटरनल फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज। ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनली टीम में कौन सी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज आपको बिल्ड करनी चाहिए, आपकी कंपनी के टैक्स के बारे में, टैक्सेशन के बारे में, ऑडिट रिपोर्ट्स किस तरीके से फाइल होनी चाहिए, वो सबका नॉलेज भी आपको होना चाहिए। सो दीज आर द स्किल्स। अगेन, जरूरी नहीं है कि एक ही रोल में हमें ये सारे स्किल्स जो हैं या ये जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो हमें करनी रहेंगी। व्हेन वी टॉक अबाउट टैक्सेशन, ऑफ कोर्स जो भी चीजें टैक्सेशन से रिक्वायर्ड होंगी, आप डेफिनेटली वहीं पे उसी तरीके के स्किल्स को परस्यू करते हुए आगे जाओगे। ओके, next, what are the top roles in finance? Again, another important thing that you should be knowing. तो सबसे पहला, सबसे मेजर रोल जो है, दैट इज द रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकर, आईबी की जो रोल्स हैं, जो भी टॉप 20 स्कूल्स में कंपनीज आती हैं, इफ दे कम एंड लुक फॉर अ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टाइप ऑफ रोल, डेफिनेटली उसका जो पे होता है वो ज्यादा ही होता है। नेक्स्ट कम्स इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, देन कम्स फाइनेंशियल एनालिस्ट। अगेन, इट्स अ वेरी दिस रोल जो आपको एवरी नाउ एंड देन हर भी स्कूल में दिखेगा। कॉर्पोरेट फाइनेंस मैनेजर, देन यू हैव अ रिस्क मैनेजर, यू हैव अ पोर्टफोलियो मैनेजर। पोर्टफोलियो मैनेजर के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे वो अलग होंगे। ट्रेजरी मैनेजर, ट्रेजरी मैनेजर का काम होता है ऑप्टिमाइज करना कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को, बैलेंस शीट्स को, सारी चीजों को। wealth manager and private banker, credit analyst, and then mergers and acquisitions consultant. So these are some top roles that ideally you can expect. जो भी आप टॉप 20 स्कूल से अगर आप एमबीए करते हो और वहां से आप एमबीए इन फाइनेंस करते हो, so these are some roles that you can expect. नेक्स्ट, व्हाट आर द टॉप कंपनीज जो आइडियली आपके माइंड में होनी चाहिए अभी से क्लियर, क्योंकि इफ आई गो अहेड एंड अगर मैं कल को अपना एसओपी लिखूंगा या लिखूंगी, तो मुझे अपना शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म गोल्स में बहुत स्पेसिफिक अगर होना पड़े, सो व्हाट कैन आई आइडियली राइट, व्हाट शुड बी माय ड्रीम कंपनी, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इन द एसओपी। सो अगर हम बात करें कंपनीज की, तो सबसे पहले यू हैव गोल्डमैन सैक्स, ऑफ कोर्स। अब इसमें किस तरीके के रोल्स के लिए वो आपको हायर करते थे, हायर यू फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एज आई मेंशन, सबसे टॉप नॉच, टॉप प्रेफर्ड रोल होता है ये। रिस्क एनालिस्ट, wealth management associate, then JP Morgan है, you have investment banking again, corporate finance analyst, private equity associate, you have Morgan Stanley investment banking analyst के लिए hire करते हैं, equity research analyst, asset management associate, then you have Bank of America investment banking associate, corporate financial analyst and risk management analyst के लिए hire करते हैं, then you have Citibank over here, कॉर्पोरेट बैंकिंग एसोसिएट, रिस्क मैनेजमेंट एसोसिएट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट के लिए हायर करते थे। यू हैव ब्लैक रॉक जो कि इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, पोर्टफोलियो मैनेजर, रिस्क मैनेजमेंट एसोसिएट के लिए हायर करती है। बार्कलेज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एसोसिएट, रिस्क एनालिस्ट एंड देन ट्रेडिंग एसोसिएट ओवर हियर। देन यू हैव डॉश बैंक investment banking analyst, risk manager, corporate finance associate. Then you have Wells Fargo corporate banking associate, risk analyst, wealth management associate के लिए hire करते हैं. Then you have UBS also over here, wealth management associate, investment banking associate और risk management analyst के लिए hire करते हैं. ये तो top 10 companies हैं जो मैंने यहाँ पे mention किए, but of course the फाइनेंस का जो पूल है, जैसा कि मैंने बताया, वो बहुत ह्यूज है. सो यू ऑल्सो हैव द बिग फोर, डेलॉइट हो गया, केपीएमजी हो गया, आपका ईवाई हो गया, पीडब्ल्यूसी हो गया, तो ये सारे फर्म्स भी आ जाते हैं उसमें.
Okay, now let us understand the salary range. The salary range कितना जाता है typically? So if I talk about freshers, और अगर आप from top B school हो तो 15 LPA से 30 LPA के बीच में you would be getting the salary if you go ahead with a finance role. When we talk about mid level, यानी कि अगर आपके पास 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 30 LPA to 60 LPA. देन व्हेन वी टॉक अबाउट सीनियर लेवल, यानी कि अगर आपके पास 10 साल के बियॉन्ड का एक्सपीरियंस है तब आपकी सैलरी हो जाती है 1 CR प्लस पर एनम. Okay, now when we talk about the international based placements and top IB roles, as in top investment banking roles, it can cross 1 CR at the very start only. अगर आपको कोई इंटरनेशनल ऑफर मिलता है, आई अहमदाबाद की अगर हम बात करें, दे डू गिव इंटरनेशनल ऑफर्स, या एक्सेलर की हम बात करें, वहां पे भी आपको इंटरनेशनल ऑफर्स मिलते हैं, IFT दिल्ली में मिलते हैं, तो सैलरी डेफिनेटली 1 CR और उसके अबव जा सकती है वहां पे, स्पेसिफिकली फॉर द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल्स. Now, next, the very important and very crucial thing to know for us is the top B schools that we should be targeting at top MBA colleges. तो यहाँ पे मैंने लिस्ट रखी है और टॉप 15 MBA colleges जो MBA in finance के लिए बहुत ज़्यादा ही जाने जाते हैं, या जहाँ पे फाइनेंस के प्लेसमेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं. तो सबसे पहले तो डेफिनेटली आई एम अहमदाबाद है इन द लिस्ट. 25 lakhs फी है, 30 to 35 LPA is the average salary. Then you have IIM Bangalore, 24 lakhs के अराउंड फीस है, 30 to 32 LPA के अराउंड आपकी एवरेज सैलरी है. देन यू हैव कैलकाटा, 24 lakhs के अराउंड फीस, 32 to 34 LPA. नाउ IIM कैलकाटा को फाइनेंस हब भी कहते हैं, जैसे हम बैंगलोर को कंसल्टिंग का हब कहते हैं, वैसे कैलकाटा इज पॉपुलरली नोन फॉर इट्स MBA इन फाइनेंस. नेक्स्ट, ISB हैदराबाद की अगर हम बात करें, 42 lakhs के अराउंड फीस है, 28 to 30 LPA के अराउंड आपका जो है एवरेज सैलरी जाता है. नेक्स्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट IIM लखनऊ, 20 lakhs फी, 23 to 25 LPA is the average salary. Then you have IIM Kozhikode, 22 lakhs फी है, 23 to 24 LPA के अराउंड एवरेज सैलरी जाती है. Now this average salary that I've mentioned is typically for the finance roles that we're talking about. Then you have IIM Indore, 22 lakhs के अराउंड फीस, 22 to 24 LPA is the average salary. You have FMS Delhi, 2 lakhs की फीस है, 25 to 27 LPA जाता है for finance. Now FMS Delhi again known as the ROI king, so I think 2 lakhs के सामने 25 to 27 is a good ROI number. Exelara Jamshedpur, 25 lakhs is the fee, 26 to 28 LPA is the average salary. SPG IMR Mumbai का finance program की अगर हम बात करें, 24 lakhs fee, 26 to 27 LPA is the average salary. Then you have MDI Gurgaon, 24 lakhs fee, 23 to 24 LPA is the average salary. You have JBIMS Mumbai also on the list. 7 lakhs fee है, 24 to 26 LPA is the average salary. Then you have IFT Delhi, again 22 lakhs fee है, 21 to 23 LPA जाता है. Finance plus trade. Now when we talk about IFT Delhi, तो typically finance और trading के लिए अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा कॉलेज है. NMIMS Mumbai, 24 lakhs fee, 90 to 22 LPA is the average salary. SIBM Pune, 22 lakhs fee है, 18 to 20 LPA is the average salary. So this is the list of top 15 B schools. आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो if you want, so that it gives you a clarity कि मुझे ये सारे B schools को टारगेट में रखना है, माइंड में रखना है. नेक्स्ट, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द हाईएस्ट पैकेज. जैसा कि मैंने बताया था कि आई वुड बी रिवीलिंग दिस थिंग इन द एंड कि हाईएस्ट पैकेज क्या होता है टिपिकली व्हेन वी परस्यू फाइनेंस, या हम अगर MBA इन फाइनेंस करते हैं. तो टॉप फाइनेंस रोल का जो पैकेज है, अगर हम IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा के फाइनेंस रोल्स की बात करें, स्पेशली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की, जैसा कि मैंने बताया इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज द मोस्ट प्रेफर्ड एंड द हाईएस्ट पेइंग रोल, have gone up to 1.2 crore per annum. और यहाँ हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ऑफर्स की. इंटरनेशनल ऑफर्स में यस, यू कैन एक्सपेक्ट 1 crore के बियॉन्ड आपकी सैलरी हो सकती है हाईएस्ट. डोमेस्टिक की अगर मैं बात करूं हाईएस्ट, तो इट गोज अराउंड 65 to 75 LP. अगेन जो फर्म्स आपको ये ऑफर करते हैं सैलरी पैकेज, दैट इज गोल्डमैन हो गया, ब्लैकस्टोन हो गया, JP मॉर्गन हो गया. अगेन फॉर IB रोल्स दैट इज द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल्स.
Okay, students, so that was it from my side. I hope this video was helpful for you all and इससे आपको अब पता चल गया होगा कि ideally you should be doing MBA in finance or not. I would be coming up with more such specialization video. We'll be talking about marketing also, we'll be talking about HR also, और भी जो new age specializations हैं हम उनके बारे में भी बात करेंगे. बट उससे पहले ज़रूरी है कि आप टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लो अपने कैट 2025 प्रेपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अच्छा करने के लिए, बिकॉज वी आर शेयरिंग अ लॉट ऑफ फ्री रिसोर्सेज जो आपके काफी यूज में आ सकते हैं. सो द लिंक फॉर द सेम इज गिवन इन द फर्स्ट कॉमेंट. मेक श्योर यू डू ज्वाइन इट राइट नाउ. प्लस डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. तो आपके कुछ भी डाउट्स कुछ भी क्वेरीज होंगे हम आपको इंस्टाग्राम आप हमको इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हो. अगेन अ लॉट ऑफ प्लेसमेंट रिपोर्ट्स, बी स्कूल से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स हैं, एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है अगर आपको मिस आउट नहीं करनी है, सो मेक श्योर यू डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, स्टे ट्यून ऑन सुपर ग्रैड्स कैट यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब करना मत भूलना.